industrial awareness program focus on quality control order QCO જે આપણે દર મંથલી ચેમ્બર અને બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ સાથે જોઈન્ટલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આપણે અવેરનેસ પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છે તેનું આજે 8મું સંસ્કરણ છે. તો હું ચેમ્બરના પ્રમુખ ચેમ્બરના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસીને વેલકમ નોટ્સ આપવા માટે વિનંતી કરીશ. નમસ્તે, ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી તરફથી. આપણે સૌ જાણીએ તેમ દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એટલે 13,000 થી વધુ સભ્યોનું પીઠબળ ધરાવતું 150 થી વધુ એસોસિએશન સાથે સંકળાયેલું દક્ષિણ ગુજરાતનું એકમાત્ર બિન રાજકીય સર્વ સ્વીકૃત ઔદ્યોગિક સંગઠન છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ આ સંગઠનની જવાબદારી ધંધા અને ઉદ્યોગના મિત્રોને વર્તમાન પ્રવાહોથી વાકેફ રાખવા તે તો છે જ, પણ તેની સાથે સાથે જે કાયદા અને કાનૂન છે તેની જે પ્રક્રિયા છે તેની સરળ સમજ આપવા માટેનો પણ આપણો પ્રયાસ છે અને એના ભાગરૂપે આજનો આ કાર્યક્રમ આયોજિત થયો છે. એચ.કે. સિંઘ સાહેબ, જે સિનિયર ડાયરેક્ટર હેડ છે BIS બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ સુરત ઓફિસ, હી ઇઝ અ મેન ઓફ પેશન. આટલી ધીરજથી આ પ્રકારના કન્સિસ્ટન્ટ કાર્યક્રમોની હારમાળા જો કોઈ થઈ હોય તો તે માત્ર સિંઘ સાહેબના કાર્યકાળ દરમિયાન થઈ રહી છે, તેનો આપણને આનંદ છે. जोरदार ताली सिंह साहब सर, इतना जो पैशन से आप काम कर रहे हैं और BIS को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो प्रयत्न किए शायद बहुत कम लोगों ने किए हैं. आपके ये जो पूरा उपक्रम है उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं. मित्रों, सब्जेक्टની સમજ મારે તમને આપવા કરતા સિંઘ સાહેબ જ આપશે, એટલે હું સબ્જેક્ટની મથામણમાં પડતો નથી. પણ મને જે થોડું ઘણું સમજ પડે છે તે એટલું જ છે કે ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનોમાં ઉચ્ચ ધોરણો જાળવવા અને તેની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ક્વોલિટી કંટ્રોલ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે. અને આજના દરેક વખત આપણે અલગ અલગ સબ્જેક્ટ લઈએ છીએ અને આજે એલ્યુમિનિયમ, કોપર, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, વોટર બોટલ્સ, કિચનવેરની પ્રોડક્ટ માટે જ નહીં પણ ક્વોલિટી કંટ્રોલ ઓર્ડર દરેક ક્ષેત્રોમાં વપરાતી સામગ્રીની ડ્યુરેબિલિટી અને રિલાયબિલિટી માટે પણ એટલી જરૂરી છે. તેવી રીતે BIS સર્ટિફિકેશન પણ જરૂરી છે. મશીનરી સલામતી પ્રોટોકોલ પણ એટલા જ મહત્વપૂર્ણ છે, જે વિવિધ ઉદ્યોગોમાં કામદારોનું રક્ષણ કરે છે અને અકસ્માતોને અટકાવે છે. આ નિયમો અને ધોરણો ફક્ત ઉત્પાદનની ગુણવત્તા જાળવવા માટે જ નહીં પરંતુ જીવન અને પર્યાવરણને સુરક્ષિત રાખવા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે. સુરતના ઉદ્યોગ સાહસિકો અને વેપારીઓ ક્વોલિટી કંટ્રોલ ઓર્ડરથી માહિતગાર થાય તથા ઉદ્યોગ ધંધાઓના દરેક પાસામાં ગુણવત્તા અને સલામતીના મૂલ્યોને જાળવી રાખવા માટે પ્રતિબદ્ધ થાય તે માટે ખાસ આજના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વખતે સતત આ કાર્યક્રમની અંદર વધુ એક વખત સિંઘ સાહેબ, અમારા આ કમિટીના ચેરમેન શ્રી નરેશભાઈ પચ્ચીગર, ચેમ્બરના મેનેજિંગ કમિટીના સભ્યો, ચેમ્બરના અન્ય સભ્યો અને આમંત્રિત સજ્જનો અને સંધારીઓનું ચેમ્બર વતી સ્વાગત કરતા મને અત્યંત આનંદ અને ગર્વ થાય છે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ચેમ્બર વતી એક નાનકડા ટોકન ઓફ લવ અને અફેક્શન તરીકે હું સિંઘ સાહેબને પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરવા માંગુ છું. બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડના ગુજરાત હેડ સિંઘ સાહેબ અમારા ઘણા વર્ષોથી મિત્ર અને અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ્યારે બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ લાગ્યું અને જ્યારે એ રાજકોટ હતા ત્યારથી જ એમની સાથેનો મારો ઘનિષ્ઠ પરિચય. એમને જ્યારે સુરત એમની ઓફિસ આપણા ગુજરાતની જ્યારે સુરત ઓફિસ શિફ્ટ કરી ત્યારથી કન્ટિન્યુઅસલી એમનો કોર્ડિનેશન મારી સાથે ચાલુ રહ્યું ને એમનું સંલગ્ન ચેમ્બર સાથે કરવામાં આવ્યું અને ચેમ્બર દ્વારા દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી પર જે બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ જે BIS લાગે છે ત્યારે એમનો અનુરોધ હતો કે આપણે ચેમ્બર સાથે મળીને દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીને આ BIS અંગે માહિતગાર કરવા. તો જે સિંઘ સાહેબનો આમ તો એ રાજકોટ અને ગુજરાતના હેડ છે અને આપણી સુરત શાખામાં અત્યારે ગોળધોડ રોડ પર પોતાની ઓફિસ ધરાવે છે અને બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડના આપણે તમે જાણતા હશો કે લગભગ ઘણી બધી પ્રોડક્ટો ઉપર BIS લાગે છે
અને જે સંલગ્ન સિંહ સાહેબ જે નિખિલભાઈએ કીધું કે જે એમના ટેન્યુઅરમાં જે આપણે અત્યારે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ચેમ્બર અને બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ઉદ્યોગોને જે માહિતી ઉદ્યોગકારોને જે માહિતી આપવા માટે આપણે એક દરેક સેમિનારો દર મંથલી કરીએ છીએ તે માટે હું સિંહ સાહેબનો પણ આભાર માનું છું અને હવે આ કાર્યક્રમ વિશે સિંહ સાહેબને વધુ માહિતી આપવા માટે વિનંતી કરીશ. થેન્ક યુ. थैंक यू नैनीश जी. माननीय निखिल सर और उद्योगों से ट्रेडर्स में से आए हुए प्रतिनिधि, सबसे पहले तो आप सबका इस कार्यक्रम में मैं भारतीय मानक ब्यूरो सूरत शाखा कार्यालय की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. और हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि आखिरकार हम ये कार्यक्रम क्यों आयोजित कर रहे हैं. आपने देखा होगा, पहले भी हो सकता है कुछ कार्यक्रम आपने अटेंड किए हों. तो जो हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, पहला तो ये है कि आज की डेट में स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी से रिलेटेड हमारे देश में क्या काम हो रहा है इसके बारे में जानकारी देना. दूसरा, जो प्रोडक्ट के ऊपर सर्टिफिकेशन होता है, कैसे होता है, कैसे लेना है, इंडस्ट्री को क्या क्या नियम फॉलो करने हैं, उसके बारे में जानकारी देना. साथ में पिछले विगत 2 वर्षों में भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लाए हैं. और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स क्या होते हैं, उनका क्या मीनिंग है, उनके नॉन कंप्लायंस के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसके बारे में जानकारी देना. फिर MSMEs के लिए या दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए BIS ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं उसके बारे में जानकारी देना. साथ में आप सब लोगों से इस बात की भी फीडबैक लेना कि कौन से ऐसे नए प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, आपसे सजेशन लेना कि उनके ऊपर स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं ताकि एज ए कंज्यूमर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको उपलब्ध हो सके. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि आप लोग लगातार न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़े होंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो ने खिलौना व्यापारियों के यहाँ छापेमारी की, जो कि बिना SI वाले मार्क वाले खिलौने बेच रहे थे. तो अभी पिछले हफ्ते एक केस हमारे जो अधिकारी थे फाइल करने गए थे कोर्ट में. तो उन्होंने जज साहब ने पूछा कि क्या आप लोगों को इस बारे में बताते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी देते हैं कि ये प्रोडक्ट बिना SI मार्क के बनाए या बेचे नहीं जा सकते. तो हमने कहा हाँ, हम लोग न्यूज़पेपर में देते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ जा कर के कार्यक्रम करते हैं, और इवन अगर आप माई FM सुनते हो उसमें जिंगल्स के थ्रू भी करते हैं, अलग अलग जगह पर होर्डिंग. उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं सुना अब तक. तो वही सिचुएशन यहाँ पर इंडस्ट्री की भी है. मुझे खेद है कि जब इतने साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं, और आज का स्पेशली कार्यक्रम इस हिसाब से था कि ट्रेडर्स ज़्यादा आए, क्योंकि इंडस्ट्री वालों को तो हम लोग अलग अलग जगह पर जा करके, चाहे दमन में काम कर रहे हैं, उमरगांव में काम कर रहे हैं, वापी में काम कर रहे हैं, अंकलेश्वर में, भरूच में, बड़ौदा में, अलग अलग जाकर तो हम उन्हें बता ही रहे हैं और सर्टिफिकेशन के लिए भी आ रहे हैं. लेकिन जो सबसे अछूते हैं या जो सबसे कम इसमें इंटरेस्ट लेते हैं वो ट्रेडर्स और इम्पोर्टर्स, जबकि सबसे ज़्यादा बाद में समस्या में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स की वजह से वही आने वाले हैं. आज का अगर आप जब आपका आगे का प्रेजेंटेशन देखेंगे तो कहेंगे कि अरे ये भी प्रोडक्ट ISI मार्क कंपलसरी हो चुका है, आपको पता नहीं है. हो सकता है आपके पास आज भी सब्सटेंशियल स्टॉक पड़ा हुआ हो उसका, जो बिना ISI मार्क का हो, इम्पोर्ट का हो, वो कब तक आप बेच सकते हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमने किया था. कोई बात नहीं, मैं गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि
हम अभी कंप्लीट लिस्ट शेयर करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स कंपलसरी में है, तो एटलीस्ट वो अपने फोरम के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू मैक्सिमम ट्रेडर्स को बताएं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स कंपलसरी ऑलरेडी हो चुके हैं। थोड़ी सी हम जान लें भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में। तो हमारा जो संस्था है 1947 में 6 जनवरी 1947 में स्टार्ट हुआ था ISI इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के नाम से, जो कि बाद में वर्ष 1986 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट के माध्यम से स्टेट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया और पार्लियामेंट से एक्ट पारित होने के बाद से हम ISI से चेंज होकर के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में चेंज हुए। लेकिन तब तक ISI मार्क काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, इसलिए जो क्वालिटी का मार्क था, सर्टिफिकेशन का मार्क था, वो चेंज नहीं किया गया था। बाद में 2016 में एक्ट और रिवाइज हुआ, क्योंकि तब तक कुछ और एक्टिविटी हॉल मार्किंग की और दूसरी एक्टिविटी जुड़ चुकी थी, वो सारी भी BIS के परव्यू में आई। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल आर्डर्स के इम्प्लीकेशंस बढ़ रहे थे, तो इसलिए भी एम्पावरमेंट BIS का जरूरी था। तो हम 2016 का जो BIS एक्ट है उसके अंतर्गत काम करते हैं। हमारे पूरे देश, हमारा जो हेड क्वार्टर है वो मुख्यालय वो दिल्ली में है। इसके अलावा 5 क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस है। हमारा वेस्टर्न रीजन में मुंबई है, ईस्टर्न रीजन में कोलकाता है, नॉर्दर्न रीजन में चंडीगढ़ है, और सदर्न में चेन्नई है, और सेंट्रल दिल्ली में है। इसके अलावा हमारे 36 ब्रांच ऑफिसेज हैं, जिसमें से 4 ब्रांच ऑफिस सबसे ज़्यादा अगर पूरे देश में देखा जाए तो गुजरात में है, जिसमें कि सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और गांधीधाम। हमारा जो सूरत ऑफिस है उसके ज्यूरिडिक्शन में साउथ गुजरात के 9 जिले आते हैं, सूरत, वडोदरा से लेकर के वलसाड तक। इसके अलावा महाराष्ट्र के धुले और नंदुरबार यहाँ से कवर होते हैं। मध्य प्रदेश का बरवानी डिस्ट्रिक्ट, और यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली और दमन, ये 14 डिस्ट्रिक्ट हम लोग यहाँ से सूरत ऑफिस से कवर करते हैं। हमारी जो मेजर एक्टिविटीज हैं उनमें सबसे पहला काम तो स्टैंडर्ड्स बनाने का है, जिनको हम इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं। उनके हर प्रोडक्ट के या मेथड के या प्रोसेस के या सिस्टम के इंडिविजुअल यूनिक नंबर होता है। जैसे हमारा IS-1 है, वो जो हमारा खादी का नेशनल फ्लैग है, उसकी गुणवत्ता, क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए, कैसा कपड़ा यूज होना चाहिए, क्या डायमेंशंस होना चाहिए, वो IS-1 रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद अब तक 23,000 से ज़्यादा इंडियन स्टैंडर्ड BIS बना चुका है। फिर हमने स्टैंडर्ड्स बना दिए, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इंडस्ट्री बना रही है, वो क्या स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं, उसके लिए कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम रखती है BIS, जिसमें 2 मेन स्कीम है, एक ISI मार्क और एक रजिस्ट्रेशन मार्क। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स रजिस्ट्रेशन मार्क में है, और सामान्य दूसरे प्रोडक्ट ISI मार्क में है। लेकिन बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है, ओवरलैपिंग भी है। फिर जो प्रोडक्ट्स हम सर्टिफाई कर रहे हैं उनको टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज की आवश्यकता होती है। तो BIS की अपनी 8 अपनी लेबोरेटरीज हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा गवर्नमेंट और प्राइवेट लेबोरेटरीज भी BIS ने रिकॉग्नाइज कर रखी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए BIS काम करता है, अलग अलग जगह पर स्टैंडर्ड प्रमोशन एक्टिविटी करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, RWA मेंबर्स के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, इंडस्ट्री के साथ करते हैं। एक एक्टिविटी BIS ने शुरू की थी सोने और चांदी के ऊपर हॉल मार्किंग की, वो भी BIS की एक मेजर एक्टिविटी है। तो ये कुल मिला के हमारी जो मेजर एक्टिविटीज़ है, कोर एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, ये है। अब हम थोड़ी सी स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं उसके बारे में चर्चा कर लें। जैसे कि आप जानते हैं प्रोडक्ट बहुत वेरी कर सकता है, टेक्सटाइल का हो सकता है, इलेक्ट्रिकल आइटम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए BIS ने 17 अलग अलग डिवीजन काउंसिल, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, फूड एंड एग्रीकल्चर, इस तरह करके
डिवीजन काउंसिल्स बनाई हुई हैं और उन डिवीजन काउंसिल्स में 400 से ज़्यादा टेक्निकल कमेटीज हैं ग्रुप वाइज, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। उन कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, रेगुलेटरी बॉडी जैसे जीपीसीबी, सीपीसीबी है, एफएसएसएआई है, आईआरडीए है, जो भी संस्था रेगुलेशन का काम करती हैं वो सारे इसके मेंबर्स होती हैं। लेबोरेटरी जहाँ पर प्रोडक्ट टेस्ट होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, ताकि जो मेथड ऑफ टेस्ट बने वो सही हो, रिप्रोड्यूसिबल हो, रिपीटेबल हो। इसके अलावा R&D जो ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि जो हमारा स्टैंडर्ड्स है उसमें जो रिक्वायरमेंट हो वो अद्यतन हो, अपडेटेड हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो। कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहे, ऐसा ना हो कि सिर्फ इंडस्ट्री फेवरेबल बन जाए, इसलिए हर टेक्निकल कमेटी में 2 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी मेंबर होते हैं और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस IIT NITs के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो मेंबर। ये सारे लोग मिल करके स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। सर्टिफिकेशन हाँ, जैसे नंबर्स की बात करें तो मैंने बताया 23,630 स्टैंडर्ड अब तक बन चुके हैं। करीब 1325 प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर सर्टिफिकेशन हो रहा है। उनमें से 750 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कंपलसरी सर्टिफिकेशन में, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में, यानी बिना BIS के स्टैंडर्ड मार्क के वो ना तो बनाए जा सकते ना बेचे जा सकते। और आज की डेट में 49,500 से भी ज़्यादा BIS के ऑल ओवर इंडिया लाइसेंस है। सर्टिफिकेशन जो मैंने जनरल बताया, सामान्य प्रोडक्ट्स ISI मार्क में है और उनमें से 720 से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपलसरी सर्टिफिकेशन में है। ये हमारे सिंबल्स हैं, ऊपर ISI मार्क पहला, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रजिस्ट्रेशन मार्क, हाँ गोल्ड हॉल मार्किंग के लिए अलग सिंबल है। BIS का जो ट्रेंगल वाला लोगो है वो यूज होता है और फाइननेस यूज होती है। और अभी नया रेगुलेशन एक आया है, ओमनिबस टेक्निकल रेगुलेशंस, जिसमें सभी तरह की मशीनरी जो भी इंडस्ट्री में यूज होती है और उसमें इलेक्ट्रिकल पावर यूज होता है, वो सारी इसके अंतर्गत कंपलसरी सर्टिफिकेशन में आने वाली है अक्टूबर 2025 के बाद। मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए भी BIS ने सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया है। और जिस तरह हम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का सर्टिफिकेशन करते हैं, उसी तरह फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स का सर्टिफिकेशन भी FMCS स्कीम के अंतर्गत करते हैं, जिसमें पूरे वर्ल्ड में 140 देशों में 2000 से ज़्यादा BIS के लाइसेंस हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट मैंडेटरी हो जाता है वो इम्पोर्ट भी नहीं हो सकता, तो अगर बाहर से इम्पोर्ट करना है तो उसके ऊपर भी ISI मार्क होना जरूरी है। तो इसके लिए FMCS स्कीम है हमारी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन मार्क है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, चार्जर है, लैपटॉप है, LED TV है, डेस्कटॉप है, सिस्टम है, बैटरी है, पावर बैंक्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इसके अलावा BIS मैनेजमेंट सिस्टम, आप लोगों ने ISO 9000, 14000, 22000 इन सब के नाम सुने होंगे। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का भी सर्टिफिकेशन BIS करता है। अलग अलग स्कीमें हैं, 9000, 14000, 20000, 22000, OSAS, एनर्जी मैनेजमेंट, ये सारी स्कीमें BIS रन करता है। अब हम जो सबसे ज़्यादा जिस पर फोकस करने वाले हैं वो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन किस किस वजह से हो सकता है? पहला सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी, एनिमल सेफ्टी, इन्वायरमेंटल सेफ्टी। दूसरा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जिसकी वजह से आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स आ रहे हैं, ताकि बाहर से सब स्टैंडर्ड मटेरियल कम प्राइस पर नहीं यहाँ पर डंप हो सके। इसके अलावा नेशनल इंटरेस्ट में भी, नेशनल सिक्योरिटी को की वजह से भी भारत सरकार कोई भी प्रोडक्ट कंपलसरी में ला सकती है।
और एक बार अगर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन का नोटिफिकेशन लागू हो गया, उस केस में वो प्रोडक्ट ना तो बनाया जा सकता, ना बेचा जा सकता, ना स्टॉक किया जा सकता और ना ही इंपोर्ट किया जा सकता। तो जो भी उसका वायोलेशन करता है किसी भी लेवल में, बेचने वाला भी वायोलेटर माना जाएगा, बनाने वाला भी वायोलेटर माना जाएगा, इंपोर्टर भी वायोलेटर माना जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे खिलौने हैं, हेलमेट है। अभी यहाँ पर सूरत में हेलमेट सबको पहनना कंपलसरी किया है, तो इंश्योर कर मतलब ऑलरेडी भारत सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ला के किया हुआ है कि बिना SI मार्क वाले हेलमेट्स नहीं बिकने चाहिए। इसी तरह सीमेंट है, टायर है, प्रेशर कुकर है, ट्यूब है, स्टील के जितने भी, चाहे वो स्टेनलेस स्टील हो, माइल्ड स्टील हो, कार्बन स्टील हो, जो भी हैं, आज की डेट में करीब 200 से ज़्यादा अलग अलग स्टील प्रोडक्ट्स कंपलसरी, यानी हमारे कंट्री में जो स्टील यूज हो रहा है किसी भी पर्पस के लिए, उसका 97% स्टील कंपलसरी सर्टिफिकेशन में बिना SI मार्क के नहीं बेचा जा सकता, ना इंपोर्ट किया जा सकता। फिर एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रिक के सारे सामान, चाहे वो केबल हो, स्विच सॉकेट हो। आपको सरप्राइज होगा, हमारे जो फुटवेयर है, जितने भी टाइप के शूज, स्लीपर, सैंडल्स, स्पोर्ट्स शूज, ये सब ये भी कंपलसरी सर्टिफिकेशन में आ चुके हैं। लार्ज स्केल के लिए कंपलसरी हो चुका है, स्मॉल स्केल 1 अप्रैल से के लगभग से लागू हो जाएगा, माइक्रो स्केल को 3-4 महीने का एक्स्ट्रा समय मिला। फिर जैसे एल्युमिनियम फॉइल है जो हमारी, इसी तरह डीप फ्रीजर है, बैटरी है, बटरफ्लाई वाल्व है। अब हम आते हैं जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, उनमें जो हमारे घरेलू यूज में होता है, घर में जो भी आइटम आज की डेट में यूज हो रहा है, चाहे वो LPG स्टोव हो, चाहे गैस गीजर हो, चाहे हमारा नॉर्मल गीजर हो, इलेक्ट्रिक आयरन हो, जितने भी टाइप के बर्तन हैं, चाहे नॉन स्टिक हो, चाहे नॉर्मल यूटेंसिल हो, चाहे स्टेनलेस स्टील की हो, चाहे एल्युमिनियम की हो, चाहे कॉपर की हो, सबके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आ चुका है। 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। इसी तरह जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, चाहे सीलिंग फैन हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, ब्लेंडर हो, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे कंपलसरी सर्टिफिकेशन में। अब हम आते हैं, जैसे बर्तनों के स्टैंडर्ड्स हमारे कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर हमने बताए हुए हैं। उनका डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो लार्ज और मीडियम स्केल 1 अप्रैल से उनके लिए कंपलसरी हो गया है। स्मॉल स्केल के लिए 1 जुलाई 2025 से, और माइक्रो स्केल जो यूनिट्स हैं उनके लिए अक्टूबर 2025। इसी टाइप में फिर ये है पोर्टेबल बॉटल्स, इंसुलेशन फ्लास्क, कैसरोल वगैरह जितने भी टाइप के हमारे होते हैं। वैक्यूम फ्लास्क, जो बच्चे पानी ले जाते हैं गर्म ठंडा रखने के लिए, जो कंटेनर फूड स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, इनके ऊपर भी ऑलरेडी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू हो चुका है। जो लास्ट डेट थी दिसंबर 2024 में, सिर्फ इतना किया है भारत सरकार ने कि 5 दिसंबर से 6 महीने के लिए जो पुराना स्टॉक है, जिन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है, जो पुराना बिना SI का मटेरियल बना हुआ है, वो 6 महीने तक बेचने की परमिशन दी है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या रखी हुई है, जो भी लार्ज डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे जो कंसर्न ब्रांच ऑफिस है BIS का, वहां पर डिक्लेयर करना है कि आज की डेट में उसके पास बिना SI मार्क वाला कितना मटेरियल है, और वो इस तारीख तक उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वो है सेफ्टी ऑफ हाउस होल्ड कमर्शियल एंड सिमिलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2025।
ये लार्ज स्केल और मीडियम स्केल के लिए 18 मार्च 2025 से लागू हो गया है। स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए 18 जून 2025 से लागू होगा और माइक्रो स्केल यूनिट्स के लिए 18 सितंबर 2025 से लागू होगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे लिस्ट, तो आप घर का कोई भी आइटम, जो इवन मिसेलेनियस है, हम गाड़ी बनाने के लिए रेजर यूज करते हैं, मसाजर छोटे छोटे होते हैं, जो चाहे हीटिंग टूल्स हो, कूलिंग टूल्स हो, फूड प्रोसेसर हो, एग बीटर्स हो, मतलब XYZ एनी डोमेस्टिक आइटम इलेक्ट्रिकल का ले लीजिए, सारे इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में कवर कर दिए हैं। ये 12 दिन मतलब ऑलमोस्ट 70 प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपलसरी में आ चुके हैं, और जो इसके पहले डेट्स मैंने बताई वो भी आपके पास है। तो अब आप लोग अगर ये प्रोडक्ट्स कोई भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट बिना SI मार्क वाला बिल्कुल बंद कर दें। जो पुराना स्टॉक रखा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करें। नया बिल्कुल भी बिना SI मार्क वाला ना खरीदें। इवन जो हमारा इवेपोरेटिव एयर कूलर है, जो घर में एयर कूलर यूज होता है, और अब आज की डेट में कहते हैं प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब एयर फिल्टर्स भी घर में लगने लगे हैं, इंडस्ट्री में, ऑफिस में लगने लगे हैं, वो भी कंपलसरी में आ चुके हैं। इसके अलावा जो हमारी डिस्पेंसिंग मशीन होती है, वेंडिंग वाटर डिस्पेंसर, ये भी कंपलसरी सर्टिफिकेशन में। कपड़े धोने की मशीन, ये भी कंपलसरी सर्टिफिकेशन में। इस तरह अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक अप्लायंसेज आज की डेट में शायद ही आपको मिलेगा जिसके ऊपर BIS कंपलसरी भारत सरकार ने नहीं किया। कारण आप समझ सकते हैं, मेनली बाहर से इंपोर्ट रोकने का, यहाँ पर जो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रमोट करने का, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने का। ये सेम लिस्ट है, उसमें IS नंबर हमने बता दिए हैं साथ में जानकारी के लिए कि आपके कौन कौन से इंडियन स्टैंडर्ड कौन से प्रोडक्ट्स के लिए लगते हैं। फिर हम कई बार हमारे दिमाग में ये भी आता है कि बर्तन तो कर दिए हैं भारत सरकार ने, चाहे वो कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, चाहे स्टील का हो, स्टेनलेस स्टील का, अगर उसका रॉ मटेरियल ही सही नहीं होगा तो बर्तन अच्छी क्वालिटी के कैसे बनेंगे। उस बात को ध्यान में रखते हुए पहले भारत सरकार ने कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील के जितने भी टाइप के प्रोडक्ट्स है, जितनी भी टाइप की सीट्स ये बर्तन बनाने में या अप्लायंसेज बनाने में यूज होती हैं, वो सारे उससे पहले किए हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं इन प्रोडक्ट्स के, चाहे बर्तन के हों चाहे इलेक्ट्रिकल, तो उसमें जो भी आइटम आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी आपको इंश्योर करना है कि आप उन्हीं से लें जो आपको ISI मार्क वाले प्रोडक्ट दे रहा हो। इसी तरह कॉपर के सारे प्रोडक्ट्स, और वो भी माइक्रो स्केल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके लिए ऑलरेडी लागू हो चुका है। अब हमें कहाँ देखना है कि कौन कौन से, क्योंकि ये लिस्ट फिक्स नहीं है, लगातार नए प्रोडक्ट्स ऐड होते जा रहे हैं। तो आपको कहाँ जाना है, BIS के वेबसाइट देखना है www.bis.gov.in। वहाँ पर टॉप पर ही जो रो है उसी पर ही एक आ जाता है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर कंपलसरी सर्टिफिकेशन। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर अलग अलग स्कीम वाइज कौन से ISI मार्क में कंपलसरी है, कौन से रजिस्ट्रेशन मार्क में कंपलसरी है, वो पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है। और सामने उसके क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भी मिल जाता है जिसमें यह लिखा होता है कि ये ऑर्डर कब से लागू होने वाला है। अब हमें यह पता चल गया कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कंपलसरी सर्टिफिकेशन में है। अब अगर कोई वायोलेट करता है, वायोलेशन दो तरह का हो सकता है। पहला वायोलेशन
किसी के पास ISI मार्क का BIS का सर्टिफिकेशन नहीं है और वो नकली ISI मार्क लगाए, वो भी BIS एक्ट के सेक्शन 17 में वायोलेशन है। दूसरा है भारत सरकार ने कंपलसरी कर दिया है और बिना ISI मार्क के बना रहा है या बेच रहा है या इंपोर्ट कर रहा है या स्टॉक कर रहा है, वो भी सेक्शन 16 और 17 के अंतर्गत वायोलेशन है। तो अगर ये वायोलेशन होता है उसमें क्या क्या प्रोविजंस है। सबसे पहला, एक तो पहला तो हॉलमार्क के ऊपर है, क्योंकि हॉलमार्किंग भी सोने के ऊपर भारत सरकार ने कंपलसरी कर रखी है सेक्शन 14 और 15 के अंतर्गत। कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी, जहां पर कंपलसरी, जैसे सूरत में कंपलसरी, देश के 376 जिले ऐसे हैं जहां पर कंपलसरी है, बिना हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी 2 ग्राम से नीचे की, और कुछ जो एग्जेम्प्टेड है जैसे जो स्टोन्स और वो वाली होती है, अगर वो कोई बेचता है तो उसको फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज और बोथ। और जो फाइन है वो मिनिमम 1 लाख है, सीज्ड वैल्यू का 5 टाइम्स तक भी फाइन हो सकता है। ये बिना हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी बेचने में है। इसी तरह ISI मार्क कंपलसरी जिसमें हो गया है, वो प्रोडक्ट अगर बिना ISI मार्क के कोई बेच रहा है से उसमें इससे डबल है, गोल्ड से भी डबल है, 2 साल तक की सजा या कम से कम 2 लाख रुपए जुर्माना, या फर्स्ट 5 मतलब जो भी मटेरियल आपने बनाया है उसका 5 गुना वैल्यू तक कोर्ट उसमें पेनाल्टी दे सकती है। सेकंड ऑफेंस है, अगर एक बार किसी ने पकड़ा गया, दोबारा किसी ने को पकड़ा गया तो फिर वो 10 टाइम्स भी हो सकता है। तो ये दोनों प्रोविजंस अप्लीकेबल होते हैं। और ये जो नीचे वाला प्रोविजन है, दोनों ही कंडीशन में सेम है। डुप्लीकेट ISI मार्क लगा के बेचना या बिना ISI मार्क के बेचना, दोनों में सेम ऑफेंस है, सेम पनिशमेंट। अब एज ए मैन्युफैक्चरर, सपोज करो आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए BIS का सर्टिफिकेशन लेने के लिए, या कम से कम आप जिनसे खरीदते हैं उनको आपको गाइड करना है, तो बताना है कि BIS का सर्टिफिकेशन ले ले, उन्हें क्या क्या चाहिए। सबसे पहला, एडिक्वेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। हमने कंप्लीट नहीं लिखा, आपकी कुछ एक्टिविटी आउटसोर्स हो सकती है, सिर्फ आपको प्रोसेस कंट्रोल इंश्योर करना है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी इंश्योर करना है। दूसरा, जो जब बना रहे हैं या आउटसोर्स जितना किया हुआ है वहां पर प्रॉपर प्रोसेस कंट्रोल रखा हुआ है, ताकि जो आपका प्रोडक्ट बने वो स्टैंडर्ड के हिसाब से बने। कुछ बेसिक टेस्टिंग फैसिलिटीज, MSME यूनिट्स को उसमें भी रिलैक्सेंस दिया गया है। 2-3 यूनिट, 5 यूनिट, 7 यूनिट आपस में शेयर कर सकती हैं। लार्ज स्केल वालों के लिए इन हाउस कंप्लीट जरूरी है। MSMEs को, क्योंकि भारत सरकार इतने नए नए प्रोडक्ट्स आ रही है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसमें टेस्टिंग इक्विपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा हो, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रिलैक्सेशन दिया हुआ है। फूड प्रोडक्ट्स अगर कोई बना रहा है तो हाइजीनिक कंडीशंस, और फाइनली उसका जो प्रोडक्ट है स्टैंडर्ड में जो रिक्वायरमेंट दी हुई है वो सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो हमें जो प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन लेना है उसका इंडियन स्टैंडर्ड नंबर क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। उस इंडियन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है, मानक ऑनलाइन, वहां पर एप्लीकेशन सबमिट करना है। वहां पर एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या है? आप सिंपल, आपने सब कुछ है आपके पास, आपने एप्लीकेशन दिया, हमारी इंस्पेक्शन हुई, हम सैंपल ड्रा करेंगे, लैब में भेजेंगे, पास होने के बाद लाइसेंस मिलेगा। ऑप्शन इसमें क्या है, थोड़ी से टाइम ज़्यादा लग जाता है, 30 दिन से लेकर 90 दिन तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन लैब ने कितना टाइम लिया टेस्टिंग में, वहाँ पर कितना वर्कलोड है। ऑप्शन 2 क्या है कि आप
अप्लाई करने से पहले रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे पोर्टल में, और ऑनलाइन टेस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करके सैंपल आप अपने से लैब में BIS रिकॉग्नाइज लैब वहाँ पर लिखी होंगी, वहाँ सैंपल भेज करके अपने से टेस्ट करा देंगे। उस रिपोर्ट के साथ आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अगर आपने ऑप्शन 2 में सबमिट किया है तो जैसे ही आपका इंस्पेक्शन हो जाएगा, फैक्ट्री विजिट हो जाएगी, आपको पहले जो आपने टेस्टिंग कराई हुई है उसकी रिपोर्ट के बेसिस पर लाइसेंस मिल जाएगा। ऑप्शन 2 में मैक्सिमम 30 दिन लगते हैं। हमारा अपना सूरत ऑफिस की हम बात करें तो हमारा जो एवरेज टाइम है 18 दिन का है। अगर कोई इंस्पेक्शन तुरंत करा लेता है तो इवन 7 दिन के भीतर भी हमने लाइसेंस दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कंपलसरी किया है सरकार ने, कोई कहे कि नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, BIS में एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। 15-20 दिन 30 दिन के भीतर किसी को भी लाइसेंस मिल जाता है। हाँ, एक बार लाइसेंस जब ग्रांट हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, उसमें हम एक स्कीम ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। आप उसके हिसाब से आपको जो भी आपके पास इन हाउस फैसिलिटी है, आप टेस्ट अपना इन हाउस टेस्टिंग करते हुए रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जो बाहर से करा रहे हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, उसके हिसाब से आपको टेस्टिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जब हमारा विजिट होगा तो हम वो रिकॉर्ड वेरीफाई करेंगे। दूसरा क्या है, अगर सपोज करिए आपका प्रोसेस कंट्रोल बहुत अच्छा है और आप चाहते हो कि आपको थोड़ी सी लीनियंट फ्रीक्वेंसी रखना है, तो बजाय हमारी स्कीम ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के आप अपना क्वालिटी एश्योरेंस प्लान दे करके कि नहीं हम उसकी बजाय ये वाला प्लान फॉलो करेंगे, डेली टेस्टिंग ये पैरामीटर करेंगे, ये पैरामीटर 15 दिन में करेंगे, ये पैरामीटर 1 महीने में करेंगे, वो भी आप सबमिट करके उसके हिसाब से टेस्टिंग करा सकते हैं। फिर साल में हम 1 से 2 बार फैक्ट्री में सैंपल लेते हैं जा करके, और 2 से 4 मार्केट से सैंपल लेते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आपको अपना कंसाइनी डिटेल्स लगातार अपडेट करना होता है। हम वहाँ से अपने पर्सन भेज करके सैंपल ड्रा करके लैब में भेजते हैं। वो लगातार पास होने चाहिए। अगर पास नहीं होते हैं, फेल होते हैं, तो हम कम्युनिकेट करते हैं आपको कि आपका सैंपल फेल हुआ है, आप रूट काज एनालिसिस करिए, करेक्टिव एक्शन लीजिए, नया सैंपल ऑफर करिए। अगर आपका नया इम्प्रूव सैंपल पास हो जाता है, आपका लाइसेंस लगातार चलता है। अगर किसी के 5 में से 2 सैंपल फेल हो गए, यानी 33% से ज़्यादा फेल हो गए, तो लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। और अगर 50% से ज़्यादा सैंपल फेल होते हैं लगातार 1 साल 2 साल के भीतर, तो लाइसेंस कैंसिल भी कर दिया जाता है। तो यानी आपके मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको कंसिस्टेंटली सही क्वालिटी बनानी। अब ये हमारा मानक ऑनलाइन पोर्टल है। जब आप मानक ऑनलाइन.in में जाते हैं और कंफर्मिटी असेसमेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस टाइप का एक विंडो आता है। फिर वहाँ पर आपको लॉगिन जहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ है वहाँ पर जा करके फर्स्ट टाइम आपको अपना यूज़र आईडी क्रिएट करना है, जैसे नॉर्मल किसी भी उसमें आप साइट में करते हैं। कंपनी प्रोफाइल अपडेट करना है, MSME है, लार्ज है, जो भी है, स्टार्टअप है, वुमेन एंटरप्रेन्योर है, जो भी है वो अपडेट करेंगे। फिर आपको BIS में अप्लाई करना है। ये वो पेज है जहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है, वहाँ क्रिएट अकाउंट में जाकर ये सारी इंफॉर्मेशन भर के आप सबमिट कर देंगे तो आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस टाइप का एक वो दिखेगा। तो आप ISI मार्क के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन में जा करके आपको वो करना है। आप सैंपल पहले टेस्ट कराना है तो आप टेस्ट सैंपल में जा करके पहले टेस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करके फिर आपको ऑप्शन 2 में अगर करना है तो आपको मेनली यूज करना है ISI मार्क के लिए प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन और टेस्ट सैंपल। अगर किसी का फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन में है तो FMCS पोर्टल में जाएगा,
हॉल मार्किंग वाले हॉल मार्किंग के लिए जाएंगे, मैनेजमेंट सिस्टम वाले मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे। जब किसी का लॉगिन आप किसी यूजर का देखते हैं, किसी मैन्युफैक्चरर का जिसने ऑलरेडी लाइसेंस ले रखा है, तो उसको इस टाइप से दिखेगा कि मान लीजिए उसके पास 2 लाइसेंस है, 1 लाइसेंस है, 3 लाइसेंस है, नया एप्लीकेशन सबमिट करना है, वो सारा डिटेल्स किसी के भी लॉगिन में जाकर के आपको इस टाइप से दिखता है। ये सैंपल कैसे जनरेट करना है उसका डिटेल है, उसमें सैंपल डिटेल, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर, टाइप, वेराइटी, सीरियल नंबर, सैंपल आपको वापस चाहिए या वो डिस्पोज ऑफ करना है, उसके हिसाब से आपको कैसे टेस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करना है, इस टाइप का एक आपको ऑप्शन आता है। अब हम बात करें कि BIS क्या क्या बेनिफिट्स देता है। तो सबसे पहला ये है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो लार्ज स्केल का इंडस्ट्रीज है, उसकी तुलना में उसको सिर्फ 50% मार्किंग फीस देना है पहले 3 साल का। और जो माइक्रो स्केल यूनिट है उसको 80% डिस्काउंट है, और जो मीडियम स्केल है उसको 20%। यानी जो माइक्रो स्केल यूनिट है, अगर लार्ज स्केल यूनिट को 1 लाख रुपए फीस साल की लगती है, तो माइक्रो स्केल को सिर्फ 20,000। इसी तरह अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर फर्म है, पार्टनर मोर देन 50% पार्टनरशिप में वुमेन है या वुमेन प्रोप्राइटर है, तो उनको भी 50% डिस्काउंट मिलता है। स्टार्टअप के लिए भी सेम डिस्काउंट एप्लीकेबल है। स्लैब बना हुआ वही है, लेकिन जैसे मान लीजिए दोनों है, माइक्रो भी है, वुमेन भी है, तो पहले 50% में 10% फिर एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा चलिए कोई नहीं, आगे इसके अलावा जो मैंने बताया था कि अगर MSME यूनिट्स हैं तो उनको एक बेनिफिट है, लार्ज स्केल को तो सारी टेस्टिंग फैसिलिटी अपना इन हाउस रखना पड़ता है, लेकिन उसमें 2 तरह के प्रोविजंस दिए हुए हैं। एक प्रोविजन ये है कि वो अपना सैंपल BIS रिकॉग्नाइज्ड लैब से कहीं से भी अपना महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जो भी आप क्वालिटी एश्योरेंस प्लान दोगे उसके हिसाब से टेस्ट करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, मान लीजिए कहीं पर क्लस्टर है, 4, 5, 6 यूनिट सब ने मिल करके एक कॉमन लैब लगा ली। कॉमन लैब किसी एक प्रीमाइसेस पर भी हो सकती है या फिर किसी एक अलग सिंगल पेज पर भी हो सकती है। सब लोग अपने सैंपल वहां पर भेजेंगे, वहां पर एक कॉमन स्टाफ रखा हुआ है, कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी लगी हुई है, वो टेस्ट करके रिपोर्ट आपको देती रहेगी। वो भी प्रोविजन MSME यूनिट्स के लिए दिया हुआ है। तो ये बेनिफिट्स एक्स्ट्रा है कि जो कि BIS में दिए हुए हैं। नेक्स्ट, हाँ, एक तो साथ में BIS की वेबसाइट में आपकी जानकारी के लिए कैसे सैंपलिंग करना है, क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी सर्टिफिकेशन है उसका मैनुअल आपको अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ से डाउनलोड करके सारी गाइडलाइंस देख सकते हैं। कौन से प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, वो सारा कुछ उसमें दिया होता है। कितने सैंपल लैब में भेजने हैं वो सारा, कितनी क्वांटिटी भेजनी है वो सारा भी दिया होता है। जो क्लस्टर बेस का मैंने बताया था एग्जाम्पल, किसी एक प्रीमाइसेस पर हो सकती है या अलग जगह पर हो सकती है। फिर एक, अब जैसे आप ट्रेडर है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको पता करना है कि आपने जो मटेरियल खरीदा है, ऐसे मार्क खरीदा है, वो जेन्युइन है कि नहीं। तो उसके लिए BIS में एक BIS केयर ऐप वो किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है, जो आईफोन और दोनों में, तो एंड्रॉइड दोनों में चलता है। वो आपको अपना डाउनलोड करके रखना है और उस ऐप का यूज करते हुए आप पहला लाइसेंस वेरीफाई कर सकते हैं। ज्वेलरी वगैरह खरीदी है उसका जो HUID नंबर होता है जेन्युइन है कि नहीं, वो वेरीफाई कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा है या बेच रहे हैं, वो जिन्यून रजिस्ट्रेशन मार्क है वो वेरीफाई कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट जो है उसका इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा है वो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई कंप्लेंट है प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड वो लॉन्च कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करने का भी कैसे प्रोसेस करना है वो सारा डिटेल, कौन से प्रोडक्ट की लेबोरेटरी कौन सी है, BIS के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको BIS केयर ऐप में हैंडी है, सब कुछ मिल जाता है। कैसे वो करना है वो दिया हुआ है कि ऐसे मार्क के लिए लाइसेंस नंबर आप डालोगे उसका सारा डिटेल मिल जाएगा। हॉलमार्क के लिए HUID नंबर डालोगे तो कौन सा ज्वेलर है, कौन सा हॉल मार्किंग सेंटर किसने किया, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब जिन्यून और वैसे फिजिकली देखना है तो कैसे पता चलेगा? तो अगर खाली ISI मार्क लिखा हुआ है, IS नंबर और लाइसेंस नंबर नहीं लगा, इसका मतलब वो फेक है। इसी तरह IH पर ISI स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, ये फेक है। फिटेड विथ, पता चला कि उसमें जो मोटर लगी हुई है कूलर में वो ISI मार्क है, तो लिख दिया फिटेड विथ ISI मार्क मोटर, वो भी मिसलीडिंग है। उसमें सिर्फ मोटर ISI मार्क है, कूलर नहीं। कुछ मिलता जुलता निशान इस तरह ISI इस तरह का, ये सारा स्पूरियस है। हमें सचेत रहना है कि कहीं पर भी ऐसी कोई मार्किंग है किसी प्रोडक्ट की तो उसकी शिकायत ऑनलाइन करनी है अगर उसका डिटेल। जिन्यून ISI मार्क जो होगा, एक तो जैसे ये सिंबल है प्रॉपर इस टाइप का सिंबल होगा, फिर ऊपर IS नंबर लिखा होगा, नीचे लाइसेंस नंबर, या लेफ्ट साइड में IS नंबर, राइट साइड में लाइसेंस नंबर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। तो जिन्यून ISI मार्क जो रहेगा वो ये रहेगा। ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है जो सूरत का है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप फोन, ईमेल इसका इस्तेमाल करके हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं देना चाहता था। बाकी आपके जो भी क्वेरीज हैं आप यहाँ से पूछ के जाइए, किसी तरह का मन में डाउट रख के मत जाइए। थैंक यू। किसी को कोई डाउट है, कुछ वो है, प्रोसीजर कुछ पूछना है? या तो मैंने बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया या फिर बिल्कुल समझ नहीं आया, दोनों से एक ही बातें हो सकती हैं। ज्यादा क्लियर किया। आप लोगों में से मैक्सिमम ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है? क्या है? ट्रेडर्स। तो अभी आप लोगों के पास अगर हम इलेक्ट्रिकल आइटम्स की बात करें, मोरलेस सारे ऐसे ही मार्क हैं या कुछ मिक्स है? कोई डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं चाइना वगैरह से? हाँ, तो अब जो भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं कम से कम आगे इंपोर्ट मत करिएगा, अदरवाइज वो कस्टम में क्लियर नहीं होगा, आपको डेमरेज भी लगेगा। एडवांस पैसा तो आप पहले ही दे चुके होते हैं, तो वो फिर मुश्किल में फंस जाएगा। इसलिए कहीं से भी जहाँ से भी इंपोर्ट करें पहले वेरीफाई कर लें उसके पास जिन्यून BIS का FMCS के अंतर्गत उसके पास लाइसेंस है। अदरवाइज जब यार्न में आया था तो कुछ यार्न इंपोर्टर्स के ऊपर भी हमको रेड करनी पड़ी थी, उनके अगेंस्ट में शिकायत आने की वजह से। तो आज में अभी भी बहुत सारे इंपोर्टर्स का मटेरियल फंस जाता है, नहीं क्लियर होता, शिकायतें भी आती हैं सबसे। और अभी हमने BIS ने पूरे ऑल इंडिया लेवल में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके वेयर हाउसेज में रेड करिए। हमारे हेड ऑफिस में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है, वहाँ ऑर्डर देके हम लोग प्रोक्योर करते हैं, फिर एड्रेस देख करके
कि यहाँ से फिर हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अभी 2 रेड हमने सूरत में 1 महीने पहले 28 फरवरी को आई थिंक, सिर्फ इस बेसिस पर कि वहाँ परचेज करके फिर हम लोग बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी है कि जो फुटपाथ पे बिकते हैं, जैसे हेलमेट, हेलमेट तो वो कौन मैन्युफैक्चरर है उसका कुछ पता होता नहीं है, तो ऐसे उसकी भी शिकायत आई थी हमने, और अभी हमने 12 जगह पर सूरत में अभी पिछले 2-3 दिनों के भीतर हमने डिस्क्रीटली वहाँ पर गए, एड्रेसेस लिए, और जहाँ जहाँ का जिसमें भी जितना भी स्पूरियस था ऑलरेडी हमने यहाँ से मेल कर दिया है जो कंसर्न, क्योंकि बाई चांस गुजरात में कोई हेलमेट का मैन्युफैक्चरर नहीं है, जितने भी हैं दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद उधर के हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पर इंफॉर्मेशन जा चुकी है, कुछ जगहों पर ऑलरेडी रेड हो चुकी है, कुछ जगहों पर आगे हमारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होगी। दुकानों में भी जो ऐसी चीजें बेचते हैं नॉन आईएसआई, तो और बिल देते नहीं है, तो फिर कैसे शिकायत? नहीं, आपको 2 चीजें हैं। पहली चीज तो फिर आपको खरीदना नहीं है, सिर्फ आपको एड्रेस लेकर के कि इस जगह पर नहीं भी फोटो निकालिए, एड्रेस लेकर के जो बीआईएस केयर है हमने बताया, वो तुरंत इंफॉर्मेशन हमारे पास आपने ऑनलाइन सबमिट करी कि वहाँ पर कंप्लेंट दिखने लगती है। चौके खाली फोटो से भी हो तो जाए? हाँ, बिल जरूरी नहीं है उस केस में, आप वहाँ जा करके और कि ये चीज बिना जिसमें ऐसे ही कंपलसरी है बेच रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा क्या है कि हमें कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है, उसका कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं है, तो इसलिए स्ट्रीट वाले में थोड़ी सी दिक्कत है प्रैक्टिकल, लेकिन हम उसको कंपेंसेट मैन्युफैक्चरर तक जा करके जहाँ से आ रहा है वहाँ पर ट्रेस करके हम लोग कर, क्योंकि अदरवाइज आज उसने बेच के चला गया, उसका कुछ एड्रेस तो है नहीं, किसके कोर्ट में तो ये होगा कि आपने एड्रेस नहीं दिया, ड्रॉप हो जाएगा केस। आपने बोला कि 6 महीने का टाइम पीरियड दिया है, उसमें एप्लीकेबल हो जाए, वो कहीं ना कहीं तो पुश करेगा ही मटेरियल, तो अल्टीमेटली जाके तो कहीं ना कहीं पड़ा ही रहेगा, कंज्यूम तो होगा नहीं। देश बहुत बड़ा है, भारतीय मानक ब्यूरो बहुत छोटा है, आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा, लेकिन बीइंग अवेयरनेस जहाँ तक जो हो सकती है वो किया जाए। सर, चाइना से जितनी प्रोडक्ट आती है, तो अभी जो आप बोल रहे हैं कि अभी जो भी आएगा तो उसमें हम कैसे देख सकते हैं कि इसमें आई सही है कि नहीं है? 2 चीजें हैं। पहला चीज तो पुराने लाइसेंस चाइना में जितने मिल चुके हैं वो मिल चुके हैं, पिछले 3 या 4 साल से नए लाइसेंस नहीं मिले, ठीक है। अगर आपका जो जिससे भी आप इंपोर्ट करने वाले हैं उससे बोलिए कि आपके पास बीआईएस का सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेट देगा, कब तक वैलिड है वो बीआईएस की वेबसाइट में फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, एफएमसीएस में, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की लाइसेंस नंबर सहित, प्रोडक्ट सहित, वैलिडिटी सहित सारा डिटेल आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। हाँ, गुड सीज जो विदाउट ऐसे ही मार बोला वो गुड सीज होता है, फिर कोर्ट में केस फाइल होता है, फिर कोर्ट पेनाल्टी करता है, और वो मटेरियल एज पर बीआईएस एक्ट दैट मटेरियल कैन बी forfeited to the BIS along with the penalties and हाँ, now along with the penalty। ये जो हमारा जो आज का जो सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर हमारे हाउस होल्ड से कनेक्टेड है, स्टेनलेस स्टील और वगैरह, तो आप जो बीआईएस है, बीआईएस का जो नॉर्म्स और उसके तहत आईएसआई मार्क और सब तरीके, अभी हमने तो देखा है, मैं कनेक्टेड हूँ, तो आप जब भी आपके ऑफिस से सैंपल्स वगैरह सभी शोरूम्स में से आप लेते हैं, ऐसा ही आप अगर ऐसा है कि जो स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स है वगैरह, तो आप जो भी हमारे ज्वेलर का तो साल में 1 लिया जाता है, इनके 4 लिए जाते हैं। अच्छा, हाँ वही ज्वेलर का तो साल में 1 लिया जाता है, लेकिन इनके साल में 4 लिया बार आप जो भी हमारे रिटेलर से उसके वहाँ से आप हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री यूज होता है उस पे केस में डिस्पैच में, या मान लीजिए हम किसी बर्तन वाले फैक्ट्री में गए, उसमें स्टेनलेस स्टील की सीट किसी से ISI वाली खरीदी है, तो वहाँ से सीट का भी सैंपल ड्रा कर लिया, तो उसका वो मार्केट सैंपल हो गया जिसने सीट बना के दी। इस टाइप से भी होता है। क्योंकि क्या है, जो भी प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील की या वगैरह जो भी लेडीज परचेज करने जाती है, और वो ऐसा कुछ ज़्यादातर देखती नहीं है कि भाई अभी तक तो था नहीं, अभी मतलब ये बर्तन वगैरह का तो अभी जस्ट आया है, तो उसमें अवेयरनेस में थोड़ी सी टाइम लगेगा। और कोई प्रश्न किसी के? तो थैंक यू वेरी मच। और BIS की तरफ से आपको डिनर की व्यवस्था की गई है, तो प्लीज़ डिनर करके जाइएगा। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इंडस्ट्रियल 5 મિનિટ આજે અવેરનેસ પ્રોગ્રામ હતો, તેમાં ખરેખર એક હાઉસહોલ્ડ જ્યારે નાની નાની બાબતોમાં જો ધ્યાન રાખીએ કે જે હાઉસહોલ્ડને લગતી જે પણ આઇટમો છે તેમાં પણ જો RTBIS છે, એટલે ગવર્મેન્ટ કેટલી અવેર છે આ બાબતે એ પણ આપણે સૌ જાણીએ છીએ। આ બાબતે આપણે BIS હેડ શ્રી સિંહ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા એ બદલ સિંહ સાહેબનો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વતી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું, અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી આવેલ દરેક મહાનુભાવોનો આ તકે હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। અને સાથે ડિનરની વ્યવસ્થા રાખી છે, તો દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી મહાનુભાવોને ડિનરમાં જોડાવા માટે વિનંતી।